हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWD। आज हम लोग करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। ये एक मैथमेटिक्स का चैप्टर है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। इनफैक्ट ये नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और एक क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में इसी नंबर सिस्टम के ऊपर आपको देखने मिल जाएगा। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे व्हाट इज नंबर सिस्टम एंड हाउ नंबर सिस्टम आर डिफरेंशिएटेड। नंबर सिस्टम्स क्या क्या है और उसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा। ठीक है, देखो, नेचुरल नंबर कौन से हैं? जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं वो सारे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। যে সব নাম্বারগুলো 1 থেকে ইনফিনিটি অবধি যাবে সেই প্রত্যেকটা নাম্বার হবে আমাদের ন্যাচারাল নাম্বারস। 1 2 3 4 5 6 7 8 till 100 1000 10,000 crores 10 crores ট্রিলিয়ন্স ইনফিনিটি অবধি যতগুলো নাম্বার হবে 1 থেকে শুরু করে যতগুলো নাম্বার হবে ইনফিনিटी অবধি প্রত্যেকটা ন্যাচারাল নাম্বার। जो भी नंबर्स 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। होल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? होल नंबर होंगे। 0 से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 नहीं था, नेचुरल नंबर 0 नहीं था, यहाँ पर 0 ऐड किया गया। ठीक है, तो 0 থেকে যে সব নম্বরগুলো ইনফিনিটি অবধি যাবে সেগুলো প্রত্যেকটা নম্বর হবে হোল নাম্বার। জাস্ট মাইন্ডেড যে ন্যাচুরাল নাম্বার হোল নাম্বারের মধ্যে নেগেটিভ নাম্বারগুলো আসে না। ঠিক আছে, নেগেটিভ নাম্বারগুলো আমাদের আসবে না। এবার আসছে इवन नंबर। अब आते हैं इवन नंबर पे। जो भी संख्या, जो भी नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहा है वो सारे के सारे नंबर्स इवन नंबर्स हैं। या तो 2 से डिवाइड होगा या 2 का मल्टीपल होगा, वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? मेरे इवन नंबर्स होंगे। ठीक है, और ये भी, इसमें भी देखिए मेरा नेगेटिव नंबर्स हम लोग नहीं ले रहे हैं। ऑड नंबर्स में कौन? जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, যে সব নাম্বারগুলো 2 দিয়ে ডিভাইড হয় না, ঠিক আছে, বা 2 এর মাল্টিপল নয়, সেগুলো হচ্ছে অড নাম্বার। আর যেগুলো 2 এর মাল্টিপল হবে বা 2 এর একটা মাল্টিপ্লিকেশন ফ্যাক্টর থাকবে সেই সব হচ্ছে ইভেন নাম্বার, বা 2 দিয়ে ডিভাইড হবে সেগুলো হচ্ছে ইভেন নাম্বার। আর যেগুলো 2 দিয়ে ডিভাইড হবে না সেগুলো হচ্ছে অড নাম্বার। বা ডিভাইড হলে ওগুলো কি একটা কোনো না কোনো রিমাइंडर থেকে যাবে, সেগুলো হচ্ছে ऑड नंबर। अब आते हैं इंटीजर पे। इंटीजर क्या क्या है देखो, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके जो भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स तुमको दिखाई देगा वो सारे के सारे मेरे इंटीजर्स हैं। माइनस इन्फिनिटी থেকে পজিটিভ ইনফিনিটি অবধি যতগুলো নাম্বারস আসবে প্রত্যেকটা আমার হবে ইন্টিজার নাম্বারস। ঠিক, প্রাইম নাম্বার কি? না, প্রাইম নাম্বার হচ্ছে যে সব নাম্বারগুলো এক দিয়ে বা ওই নাম্বার, দ্য নাম্বার ইটসেলফ দিয়ে ডিভাইড হবে। a number that's divided by 1 and the number itself is a prime number. এক্সাম্পল, 2 কি হবে? হয় 2 দিয়ে ডিভাইড হবে নাহলে 1 দিয়ে ডিভাইড হবে। 7 হয় 7 দিয়ে ডিভাইড হবে নাহলে 1 দিয়ে ডিভাইড হবে। তো এই সব নাম্বারস গুলো কি হবে? এগুলো হচ্ছে প্রাইম নাম্বার। যেগুলো 1 বা যে সংখ্যা তার আছে সেই সংখ্যা দিয়ে ডিवाइड হবে সেগুলোই হবে प्राइम नंबर। जो भी संख्या, जो भी नंबर्स हैं वो 1 से या वो खुद के नंबर से डिवाइड होगा वो सारे के सारे मेरे होंगे प्राइम नंबर्स। ये तो सारे के सारे बहुत बेसिक्स है, आई होप आपको ये पता होगा। ठीक है, ये सारे के सारे बहुत बेसिक है, बहुत ये आपको जरूर पता होगा। अब आते हैं को प्राइम पे। को प्राइम में मतलब जिसके फैक्टर्स में सिर्फ वन कॉमन हो वो हो जाएंगे को प्राइम। যার ফ্যাক্টরে মাত্র এক, only one কমন আছে, একটাই মাত্র কমন আছে, সেটা হবে আমাদের কো প্রাইম। ঠিক আছে, যেমন দেখো এই 9 আছে, 9 যদি ফ্যাক্টর বলি আমি আমি এখানে লিখছি 9 এর, ধরে নাও 9 এর ফ্যাক্টর বলি 9 আর 16। এদের ফ্যাক্টর কি? এদের হচ্ছে 3 into 3 ফ্যাক্টর, আর এদের হচ্ছে কি 4 into 4। এবার এদের মধ্যে কি কোনো কিছু কমন আছে? কোন একটা কমন নেই, only one কমন। আমি যদি এখানে 1 ধরে নিই, এখানে যদি আমি একটা 1 ধরে নিই, only one কমন, হেন্স 9 and 16 আর কো প্রাইম। সেম অ্যাজ 4 and 15। 15 এ কি দেখো, 15 আছে তোমার 3 into 5। 15 এ কি আছে? 3 into 5, 3 into 5 15। আবার 4 এ কি আছে? 2 into 2 4। ঠিক আছে, এখানে দেখো কোনো কিছু কমন নেই এক্সেপ্ট 1। তো এই দুটো নাম্বার হয়ে যাবে আমার কো প্রাইম। ঠিক আছে, কো প্রাইম এমন নয় যে যেগুলো প্রাইম নাম্বার থাকলে এগুলো কো প্রাইম হবে বা প্রাইম নাম্বার না থাকলে কো প্রাইম হবে না, এমন নয়। 7 and 15 दोज आर ऑल्सो को प्राइम। 7 और 15 वो भी को प्राइम है, 7 16 भी को प्राइम है, 7 17 भी को प्राइम है, 7 18 भी को प्राइम है, 7 19 भी को प्राइम है। ठीक है, 7 20 भी को प्राइम है। ठीक है, जिस संख्या में आपको एक ओनली वन फैक्टर है, मतलब एक कॉमन है, वन जो एज अ फैक्टर वो कॉमन है, वो संख्या को प्राइम होगा एक दूसरे से। मतलब कोई भी चीज कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी वो संख्या को प्राइम में गिना जाएगा। ठीक है, आई होप ये बेसिक है, इतना आपको पता है। अगर आपको पता नहीं था तो अभी पता चल गया है, ये बिल्कुल बेसिक्स है। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, when n is divided by 5 the remainder is 2। मान लो कोई n है, क्या है n? n एक नंबर है। n क्या है? n मेरा एक नंबर है। अब बोला गया है कि नंबर जब डिवाइड बाय 5 करते हैं तो रिमाइंडर 2 होता है। जब उसी नंबर को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, रिमाइंडर मेरा यहाँ पर 2 आएगा।
2 आएगा मेरा रिमाइंडर। ठीक है, 2 आएगा रिमाइंडर। अब पूछा है जब एन स्क्वायर को जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो अगर आपको दिखाई दे, ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन दिखाई दे, या तो उसको वैल्यू से पुटिंग कर लो या कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। पहले देखो वैल्यू कैसे करेंगे हम लोग, वैल्यू पुटिंग मेथड कैसे होगा। तो एन क्या है मेरा, एन है डिविजिबल बाय 5 और रिमाइंडर 2। तो अगर रिमाइंडर 2 है और एन मेरा डिविजिबल बाय 5 है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि एन इक्वल्स टू सम नंबर, मतलब सम फैक्टर, मान लो कोई भी एक फैक्टर है x टू दी पावर 5x, मतलब 5x कोई भी एक फैक्टर है 5x प्लस 2, यही हो जाएगा। x मेरा कोई भी क्वेश्चन बनेगा, x1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यही होगा n। तो अगर हम x को यहाँ पर 1 लेते हैं, अगर x को हम लोग यहाँ पर 1 लेते हैं, तो n मेरा क्या होता है, n मेरा हो गया यहाँ पर 5 प्लस 2 7। तो 7 डिवाइड बाई अगर 5 करेंगे तो मेरा रिमाइंडर 2 आएगा, बिल्कुल 2 आ रहा है। आप करते हैं 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर मतलब कितना होता है, 7 स्क्वायर मतलब 49, n स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर मतलब 49। अब 49 डिवाइड बाई 5 जैसे करेंगे तो मेरा क्या वैल्यू आएगा, 9 से करेंगे, 5 9 से 45, रिमाइंडर आएगा मेरा 4। ये हो जाएगा मेरा आंसर। ऐसे करना है वैल्यू पुटिंग मेथड, कर लो, ठीक है। अगर मान लो ऐसा नहीं करना हो और मान लो ये जो नंबर है बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, अभी तो ये तो सिंपल नंबर दिया है, मान लो ये बहुत बड़ा नंबर है, तो कैसे करें देख लो। तो n अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मेरा हो रहा है, वो मेरा रिमाइंडर निकला है 2। क्या निकला, रिमाइंडर निकला 2। अब जैसे ही n स्क्वायर करेंगे हम लोग, मान लो n स्क्वायर करेंगे, तो n स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर, ठीक ना, n स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर, तो n स्क्वायर मेरा यहाँ पर आ सकता है, देखो 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 5x ये तो कुछ भी हो यहाँ पर, देखिए 2 तो रिमाइंडर है, तो हम लोग इसको n को लिख सकते हैं 5x प्लस 2, तो 5x2 का होल स्क्वायर, यही होगा n स्क्वायर। अब जब 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है ऐसे, तो अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा, बाइनोमियल थ्योरम, तो क्या होगा बाइनोमियल थ्योरम में, देखिए 5x स्क्वायर यही होगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 5 2 10, ये मान लो अभी ऐसे छोड़ दे 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब अगर इन सभी को हम अगर 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे, तो ये जो संख्या है, मान लो इसी चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं 5x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5 प्लस 2 इंटू 5x.2 डिवाइड बाई 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 5। तो इन सभी चीजों में क्या करेगा, 5 तो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे में तो 5 है, ये हो जाएगा 25, तो नीचे 5 कट जाएगा, यहाँ से ये 5 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4x। लेकिन ये टर्म नहीं कटेगा, तो मेरा रिमाइंडर यहाँ से क्या हो रहा है, रिमाइंडर यहाँ से 4 बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 तो हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन इससे हमें क्या सीख मिला, এখান থেকে আমি কি শিখতে পেলাম, এখান থেকে আমি শিখতে পেলাম যদি কোনো নাম্বার যদি আমি যদি স্কোয়ার n টু দি পাওয়ার m টাইমস আছে, n टू दी पावर m टाइम्स আছে, ঠিক আছে। আর আমাকে বললো কোনো একটা নাম্বার, कोई भी एक नंबर से उसको डिवाइड करना, मान लो s नंबर से डिवाइड करना है, कोई भी एक नंबर है टू दी पावर m है, लेकिन हमको क्या बोला, कोई भी एक डिजिट, मान लो कोई भी s है डिजिट, उस s से डिवाइड करना है, तो हमको उसको ऐसा तोड़ना होगा ताकि यहाँ पर s प्लस सम x इक्वल्स टू n आ जाए, जैसे कि s प्लस x इक्वल्स टू n हो, इस तरह से तोड़ना होगा, और m ऐसे डिवाइड बाई s ऐसे लिखना होगा, ताकि ये जो x है वही मेरा रिमाइंडर हो सकता है, x टू दी पावर m जो होगा बाई s, तो ये मेरा हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। अगर मान लो ये भी उस s से ज्यादा हो, मतलब अगर x टू दी पावर m, मान लो x टू दी पावर m निकला 27, और या कुछ भी ज्यादा हो 27 टू दी पावर 27, मान लो ऐसा निकला, और s क्या निकला, s है मेरा 5, যদি x টু দি পাওয়ার m 27 টু দি পাওয়ার 27 हो আর s কি হচ্ছে, s হচ্ছে 5, তাহলে আমাকে 27 টা এমন ভাবে ভাঙতে হবে, ঠিক আছে, যাতে কোনো 5 থাকে। एग्जांपल ऐसे क्या 25 প্লাস 2, তো এই 2 টু দি পাওয়ার দ্যাট সামথিং পাওয়ার উইল বি ডিভাইডেড বাই 5, তখন ওটা হয়ে যাবে আমার রিমাইন্ডার। आई होप আমি এখানে বুঝাতে পারলাম, यहाँ पर मैं आपको समझा पाया। या तो आप वैल्यू पुटिंग से कर लो, या ऐसे कर लो, या इस जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा ध्यान में रखो, ताकि जब बड़ा जब सवाल आए तब वो सवाल ऐसा अगर आप ऐसे ना बना पा रहे हो, तो बिल्कुल ये जो बाइनोमियल थ्योरम है, ये बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से आप उसका आंसर निकाल पाओ। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। फिलहाल यहाँ का आंसर क्या होगा, यहाँ का आंसर हो जाएगा मेरा 4। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिमाइंडर व्हेन 3 टू दी पावर 21 इज डिवाइडेड बाय 5, यहाँ आप देखो आ गया,
रिमाइंडर क्या है, 3 टू दी पावर 21 इज डिवाइड बाई 5। बहुत बढ़िया, देखो 3 टू दी पावर 21, तो ये तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। अब देखो 3 टू दी पावर 21 को हम लोग इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं। আমরা এই কোশ্চেনটাকে দুটো মেথড দিয়ে করতে পারি, দুটো মেথড। ঠিক আছে, কি কি মেথড দেখো। প্রথম মেথড কি, কনসেপ্ট মেথড। ওই যে যেমন দেখালাম যে আমাদের একটা বড় আছে, যে নাম্বারটা খুব বড় আছে, সেটাকে 5 দিয়ে বা 7 দিয়ে বা যে কোনো দিয়ে ডিভাইড যখন করবো, ওটা নাম্বারটাকে আমরা কিভাবে করবো, এমন ভাবে ভাগ করতে হবে যাতে ওই 5 ডে চলে আসে। যেমন দেখো, हम लोग को उस नंबर को ऐसे तोड़ना हो कि जैसे वो 5 है वो उस नंबर पे आ सके। कैसे, अगर हम लोग देखो 3 स्क्वायर करेंगे 9 होगा, तो 3 स्क्वायर करेंगे जैसे 9 होगा, लेकिन यहाँ पर 21 है तो 21/2 करना होगा हमको फिर। तो 21/2 मतलब क्या, रूट अंडर में आ जा रहा है, तो ये तो कैंसिल है भाई, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम लोग ऐसे करें 3 स्क्वायर 3 इंटू क्यूब, अगर हम लोग ऐसे करें 3 क्यूब 27 टू दी पावर, अगर हम लोग 7 कर रहे हैं तो देखो 7 3 21 आ जा रहा है बिल्कुल, और ये भी आ रहा है 3 क्यूब मतलब 27। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 टू दी पावर 7, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखो यही चीज को हम लोग अगर ऐसे लिख दें तो 25 प्लस 2 टू दी पावर 7 होल डिवाइड बाई 5, ये बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही बाइनोमियल होता है ना, एक चीज সবসময় একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবে, যখনই বাইনোমিয়াল হয়, বাইনোমিয়াল থিওরাম a প্লাস x, এটা আমরা কখন করেছি, আমরা 11 এ করেছি, a প্লাস x টু দি পাওয়ার n কি হয়, a টু দি পাওয়ার n প্লাস nc1 a টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 x প্লাস nc2 a to the power n minus 2 x square dot 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 nc n minus 1 ncn minus 1 কি হবে এখানে, a to the power 1 আর x to the power n minus 1, next ncn x to the power n, এতগুলো যাবে, এতগুলো টার্মস আসবে টোটালটা। এটাই হচ্ছে আমাদের বাইনোমিয়াল, এটা হচ্ছে আমাদের বাইনোমিয়াল থিওরাম, দিস ইজ বাইনোমিয়াল থিওরাম। তো বাইনোমিয়াল থিওরামে একটা জিনিস যদি নোটিস করে থাকো, যে প্রত্যেকটাতে দেখো এ আছে, এইখানে আছে, এইখানে আছে, এইখানে আছে, প্রত্যেকটাতে এ আছে, লাস্টেরটা বাদ দিয়ে, लास्टेरটা ए नहीं। मतलब हमें एक बाइनोमियल थ्योरम, अगर हम लोग यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो सब में ए रहेगा, सब में ए रहेगा, लेकिन आखिर का जो टर्म है उसमें ए नहीं रहेगा, आखिर के टर्म में। तो हम लोग अगर यहाँ से देखने जाए, यहाँ पर 10 टू दी पावर 7 इस आखिर के टर्म में, इसमें ए नहीं रहेगा। तो अगर हमको रिमाइंडर चाहिए तो यही वाला हमको रिमाइंडर देगा, क्योंकि बाकी सब में तो ए है। अगर इसको हम लोग डिवाइड कर पाए तो ही हमको रिमाइंडर मिल जाएगा। देखो 2 दी पावर 7 कितना होता है, तो 2 दी पावर 7 होता है 2 4 8 16 32 64 128 होता है। देखो 128 बाई 5, 2 दी पावर 7 का वैल्यू है 128, इसका जो वैल्यू है वो है मेरा 128 डिवाइड बाई 5 तो 125 हो जाता है। तो सिर्फ यहाँ पर रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा, रिमाइंडर मेरा बचेगा यहाँ पर 3। या तो इसको ऐसे कर लो, या फिर देखो, या फिर क्या है 3 टू दी पावर 21 है, ठीक है, 3 टू दी पावर 21 है। अगर हम लोग 3 का अगर हम जो टेबल अगर हम याद करें, 3 का टेबल का मतलब जो स्क्वायर टेबल क्यूब टेबल अगर हम लोग याद करते हैं, तो पहला में क्या होता है, जब मान लो 1 है, 2 दी पावर 1 है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। जब 2 दी पावर स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर है 3 स्क्वायर, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 आएगा। जब यहाँ पर क्यूब है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 आएगा। जब यहाँ पर 2 दी पावर 4 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। फिर से जब 5 जाएंगे तब मेरा फिर ये 3 आएगा। मतलब क्या, ये अपना जो पैटर्न है वो क्या होता है, वो उसको रिपीट करता है, जो पैटर्न है उस पैटर्न को वो रिपीट करता है, रिपीट करेगा पैटर्न। फिर जब 3 टू दी पावर 5 आएगा, दूसरा भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा, 3 होगा। तो ऐसे ही क्या करेगा, वो अपना पैटर्न रिपीट करेगा। तो जैसे ही रिपीट करता है, तो हम लोग देखा जाए, ये যখন 4 এ যাচ্ছি আমরা, 4 এ যখন যাচ্ছি তখন কি হচ্ছে, তখন मेरा एक সাইকেল কমপ্লিট हो रहा है। তখন 4 এ যখন যাচ্ছি 2 दी पावर 4 3 टू दी पावर 4, তখন আমার ইউনিট ডিজিট 1 আসছে। আবার যখন 3 টু দি পাওয়ার 5 করছি তখন ইউনিট ডিজিট আমার কি আসছে, 3 আসছে। তার মানে 4 এ যখন যাচ্ছি ও একটা সাইকেল কমপ্লিট করছে, আবার যখন 5 এ যখন যাচ্ছি তখন আবার একটা সাইকেল স্টার্ট করছে।
মানে আমি যদি 21 কে ডিভাইড বাই 4 করে দিই তাহলে আমার হবে 320.3, এটা হবে আমার 320.3, তাহলে আমার 321 আর চলে আসছে এখানে, তাহলে আমার 321 চলে আসছে 320.3। আই হোপ ইটস ক্লিয়ার। তো এই যে 320.3 এটা যে চলে এলো মানে কি আমার একটা পুরো সার্কেল কমপ্লিট হলো। সার্কেল কমপ্লিট হয়ে যখন আমি 3 ধরবো তো 3/5 এটাই একমাত্র আমার আসবে। 3/5 আমার কি আসবে, আমার বাঁচবে। 3/320 আমার যখন ইয়ে করবো তো 3/5ই বাঁচবে আমার, 3/5 বাঁচবে। তো এই 3টাই তখন হয়ে যাবে আমার রিমাইন্ডার, 3টা কি হয়ে যাবে তখন রিমাইন্ডার। তো হয় এইটা মনে রাখো, নইলে এই যে কনসেপ্টটা এখানে দিয়েছি এটা মনে রাখো, যে কোনো একটা, ঠিক আছে। হয় এটা মনে রাখো নইলে এটা মনে রাখো। আমি बोलबो এটা হচ্ছে बेसी ভালো कॉन्सेप्ट, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और आपके कोई भी क्वेश्चंस चाहे कितने भी बड़े हो, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, इस मेथड से वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, a student was asked to divide a number by 6 and add 12 to the quotient. He however first added 12 to the number and then divide with 6, getting 112 as the answer. स्टूडेंट जो भी हो, मान लो कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, मान लो कोई भी स्टूडेंट यह है, इसको बोला गया कि क्या पहले अपना जो नंबर है उसको पहले डिवाइड करो 12 से, जो भी क्वोशंट होगा उसको नंबर डिवाइड नंबर बाय 6, दिस इज बाय 6, माफ कीजिएगा, कोई যে কোনো একটা নাম্বারকে 6 দিয়ে ডিভাইড করো, যেটা কোশ্চেন হবে তার সঙ্গে 12 অ্যাড করে দিতে। এটা বলেছে একটা নাম্বার আছে, সেই নাম্বারটাকে 6 দিয়ে ডিভাইড করতে, যেটা কোশ্চেন হবে, যেটা কোশ্চেন আসবে সেটাকে সেটা কি করতো, আরো 12 के ऐड कर देते। किंतु एक ही कर लो, ये गधा क्या किया, ये गधा क्या पहले 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 क्या किया, देखो पहले नंबर को पहले ऐड किया, मतलब n + 12 किया, उसके बाद वो 6 से डिवाइड किया, ठीक है, उसके बाद वो 6 से डिवाइड किया, तो ये मेरा क्वोशंट ही निकलेगा। n के की कर लो, n के प्रथमे 12 দিয়ে ऐड कर दिल, however he first added 12 to the number and then divided with 6, तो डिवाइड बाय 6 করলো, তখন আমার কি হলো 112 হলো। তো কিউ কিউ ইকুয়ালস টু এখানে কত হচ্ছে 112 হচ্ছে, 112 হচ্ছে। अब देखो अगर यहाँ पर देखा जाए, ঠিক আছে, এই চीज अगर आपने ঠিক से देखा हो, তো আমি এটাকে দুভাবে সলভ করতে পারি। কি দুভাবে, দেখো যে n n যখন আমাকে বার করতে হবে, তাহলে n কে যদি আমি বার করি তো n ইকুয়ালস টু কি হচ্ছে এখানে 6 * 112 - 12, এইভাবে n বার করলাম, দিয়ে n কে 6 দিয়ে ভাগ করব, দিয়ে ভাগ করার পরে ওটাকে আবার 12 অ্যাড করব, এটা হবে। n কে কি করব 6 দিয়ে ভাগ করছি ধরে নাও, তো 6 দিয়ে যখনই ভাগ করব আমি n কে, তো দিস n ডিভাইড বাই 6, n ডিভাইড বাই 6, দিস n ডিভাইড বাই 6 ইকুয়ালস টু কত আসছে আমার এখানে 112 - 2 110, 110 আসছে, ঠিক আছে। তারপর কি করব, তারপর আমি 12 অ্যাড করব, 12 যেই অ্যাড করলাম তখন আমার आंसर চলে এলো 122, অপশন নাম্বার 2 হয়ে যাবে আমার কারেক্ট आंसर। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য টেকনিক, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য টেকনিক। नाउ द अदर टेक्निक इज, এটা এক ধরনের टेक्निक ছিল, ये एक तरह का टेक्निक था, लेकिन अलग टेक्निक अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। देखो अगर हम लोग यहां से देखें, देखो n/2 ये क्या हो रहा है, n/2, ये देखो n + 12 है, ये 6 है, तो अगर हम लोग 12 पहले ऐड करते हैं तो हम लोग इतना तो समझ में आ रहा है कि +2 हम लोग ऐड कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट हो उसका +2 हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, पहले +2 ऐड होना चाहिए, तो इससे पहले -2 ऐड कर दो, -2 कर दो तो 110 आ जाएगा। सोचना ऐसा होगा, हालांकि सेम है, आंसर सेम है, प्रोसेस भी सेम ही है, लेकिन ये कैलकुलेशन अगर मान लो ये कैलकुलेशन बड़ा होता है तो टू प्रिवेंट सच लॉन्ग कैलकुलेशन यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि अगर हम लोग कोई भी एक नंबर को, मतलब 12 नंबर को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है। अब कोई भी नंबर से जब भी हम लोग उसको ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली हम नंबर को दो से ऐड कर रहे हैं, जो भी नंबर हो क्या कर रहे हैं हम लोग जस्ट 2 ऐड कर रहे हैं, n/6 को जस्ट 2 ऐड कर रहे हैं। अगर इसी 2 को हम क्या करेंगे माइनस कर देते हैं कोसेंट से इसी 2 को जैसे हम लोग माइनस कर देते हैं हमको वो नंबर मिल जाएगा, वो नंबर/6, द नंबर/6 जो भी नंबर चाहिए वो हमको मिल जाएगा, उसी में हम लोग क्या करेंगे 12 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको ऐसे कैलकुलेटिवली सोचना होता है। अब अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन बहुत जो वैल्यू है बहुत बड़ा रहेगा तो आपको वो सोच जो है जो थिंकिंग আছে যেটা তোমার থিংকিংতে তোমার তখন হেল্প করবে। আই হোপ ইটস ক্লিয়ার, কোনো প্রবলেম নেই। चलो नेक्स्ट देखिए, द एक्सप्रेशन 2 to the power 6n minus 4 to the power 2n where n is a natural number is always divisible by, देखो 2 to the power 6n, 2 to the power 6n minus 4 to the power 2n,
এই নাম্বারটা, ये जो নাম্বার है वो कौन से নাম্বার से ডিভিজিবল हो सकता है हमेशा, কোন নাম্বার দিয়ে এটা সবসময় ডিভিজিবল হবে। ফার্স্ট অফ অল অলওয়েজ রিমেম্বার, যখন a টু দি পাওয়ার n হয় মাইনাস x টু দি পাওয়ার n হয়, তখন এটা অলওয়েজ ডিভিজিবল বাই a মাইনাস n। it is always divisible by a minus n, it is always divisible by a minus n, ঠিক আছে। কিন্তু এখানে আমাদের কি যে এই যে পাওয়ারটা সেম থাকতে হবে, দেখতে পাচ্ছ পাওয়ারটা কি আছে আমাদের সেম থাকতে হবে, এখানে কি পাওয়ারটা সেম আছে নেই, তাহলে আগে আমাদেরকে সেম করতে হবে। কিভাবে সেম করবো দেখো, তো আমি এটাকে কত পারি 2 স্কোয়ার 3n মাইনাস 4 2n, এক কাজ করে এটাকে কিউব করে দাও, ঠিক আছে 2n আছে তো এখানে 2n করে দিলাম, 2 কিউব 2n, তো এখানে আমার 3 টু দ্য 6n চলে আসবে, তাই তো। আর এখানে দেখো 2n আসছে, তো আলটিমেট এটা কি হলো 8 2n মাইনাস 4 2n, এটাই আসছে 8 2n মাইনাস 4 2n, তো 8 2n মাইনাস 4 2n, তো আলটিমেটলি দেখো এটাই হলো। তো যদি এটাকে আমি লিখি, এটা 8 64 64n মাইনাস 16n, এটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি। দেখো প্রত্যেকটা দেখো কমন আছে, মানে এনটা পুরোপুরি কমন, মানে এনটা মানে পুরোপুরি ম্যাচ করছে। আইদার এটা লিখতে পাবো, নাহলে নাহলে অন্যভাবে লিখতে হবে। আমি এখানে এইট আর 4টাকে রাখতে পারতাম, তখন এইট আর 4টাকে রাখলে তা 8 মাইনাস 4 হতো আমার, এই যে 8 আর 4 দিয়ে রেখে দিতাম, তাহলে এটা আসতো আমার 8 মাইনাস 4, a মাইনাস b 8 মাইনাস 4, তো মানে 4, তো 4 দিয়ে দেখো একটা দুটো ভ্যালুই যাচ্ছে 4 দিয়ে, তো অবভিয়াসলি আমাকে কি করতে হবে আর একটা তোমার পাওয়ারকে এখান থেকে পাওয়ারটাকে এখানে আরো মাল্টিপ্লাই করতে হবে, তো 8 স্কোয়ার 64 আর 4 স্কোয়ার 16, ঠিক আছে 4 স্কোয়ার 16, এবার দেখো কোনো কিছু নাই, 64 মাইনাস 16 কত হবে এখানে 48, তো এইখানে অপশন আমার 48টা হয়ে যাবে আমার কারেক্ট আনসার, 48 বোঝা গেল। কেন কি এখানে দেখো 64 টু দি a টু দি পাওয়ার n and x to the power n is always divisible by a minus n, a minus n की है 64 minus 16, that is 48। आई होप इट्स क्लियर, सबको समझ में आया। जब कभी भी आपको ऐसा सम दे कि a टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर है n है और ये किससे डिविजिबल है, तो हमेशा याद रखिएगा वो a माइनस n से डिविजिबल है। ओके नेक्स्ट, 4 टू दी पावर 61 4 टू दी पावर 62 प्लस 4 टू दी पावर 63 इज डिविजिबल बाय, ये किससे डिविजिबल है आप देखो, अगर 4 टू दी पावर 61 अगर निकालने जाओगे तब तो हो चुका, फिर उसको 4 से गुना करोगे, फिर 16 से गुना करोगे, मतलब हो चुका। इस चीज को बेसिक वे में कैसे निकालें, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 4 टू दी पावर 61 प्लस 4 टू दी पावर 62 प्लस 4 टू दी पावर 63 है, क्या करेंगे 4 टू दी पावर 61 को कॉमन ले लेंगे, আমরা কি করব 4 টু দি পাওয়ার 61 কে আমরা কমন নিয়ে নেব, কমন নিলে এটা তো পুরোপুরি কমন, ये पूरा पूरी कॉमन हो गया, तो ये हो गया मेरा 1, এটা তো 1 হয়ে গেল, কিন্তু এখানে কি হবে, এখানে দেখো 62 আছে, 60 যদি আমি করি 4 টু দি পাওয়ার 62, এটা তো মানেই হয় 4 টু দি পাওয়ার 61.4 मतलब ইনটু 4, তাহলে এখানে একটা ইনটু 4 আসবে, তাহলে প্লাস 4 এলো। अच्छा 63 আছে, মানে 4 টু দি পাওয়ার 63 का मतलब क्या होता है 4 टू दी पावर 61 ইনটু 16, তাহলে এখানে প্লাস 16 আসবে, প্লাস কি আসবে 16 আসবে। এবার দেখো এই যে 16 এলো, আলটিমেটলি এটা কত হলো 4 টু দি পাওয়ার 61 ইনটু 16 প্লাস 4 20 20 প্লাস 1 21 আসছে, আমার आंसर रेडी। এবার দেখো বলেছে কি ইজ डिविजिबल बाय, का किससे डिविजिबल 21 किससे डिविजिबल है, तो 21 3 से डिविजिबल है, 3 से ये डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। दिस इज द फास्टेस्ट वे एंड द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस, ये इकलौता वे है और कोई वे है भी नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए चलो, weight of a bucket when filled fully with a water of 17 kg, if the weight of the bucket when half filled with water is 13.5 किलो, मतलब मान लो जे यहाँ पर एक बाल्टी है, ऐसे एक बाल्टी है, ठीक है, हम लोग का बाल्टी तो कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा एक बाल्टी है, ठीक, ये बाल्टी है, बोला है जब पानी पूरा भरा हो, टोटल में यहाँ पर टोटल में पानी पूरा भरा है, ठीक है, ये पूरा पानी यहाँ पर ऐसा पूरा भरा है, तो क्या होगा वेट है 17 kg। तो अगर मान लो सिर्फ बाल्टी का वेट, ठीक है, बकेट का वेट, बकेट का अगर हम लोग वेट लेते हैं मान लो x और वाटर का वेट लेंगे मान लो y, तो बोला गया है x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई है मेरा 17 kg, ठीक है। अब बोला गया हाफ फील्ड, क्या बोला है हाफ फील्ड मतलब x प्लस वाई बाई 2, अच्छा यहाँ पर x बाई 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाल्टी तो आधा नहीं हो रहा है,
सिर्फ पानी आधा हो रहा है, ठीक है। तो x प्लस वाई बाई टू एट इक्वल्स टू 13.5 kg। क्या करेंगे हम लोग, इसको माइनस कर देंगे पूरा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यही करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो जैसे ही माइनस करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म कट जाएगा। तो y माइनस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर 3.5। तो ये y माइनस वाई बाई टू क्या होता है, y बाई टू होता है ये। तो y बाई टू इज इक्वल्स टू 3.5, y इज इक्वल्स टू क्या है मेरा 7 kg। तो पूरा जो y है, जो वाटर का मेरा वेट है वो है मेरा 7 kg। और यहाँ पर क्या, अगर 7 kg यहाँ पर ऐसे पुट कर देंगे तो मेरा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 10 kg। तो जो मेरा बाल्टी का वेट है वो मेरा क्या है 10 kg। ऑप्शन नंबर 3 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, इफ अ 9 digit नंबर इज डिविजिबल बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ 4x माइनस 3y। तो पहले 9 digit नंबर देखो, 9, 8, 5, x, 3, 6, 7, 8, y। अब ये किससे डिविजिबल हो रहा है, ये डिविजिबल हो रहा है 72 से। अब ऐसे क्वेश्चंस अभी तक मैंने आपको समझाए नहीं है, तो इसलिए पहले एक बार समझ लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल देखो 72 छिलो था ना, 72 था, 72 इंटू मतलब क्या होता है, ये 9 इंटू 8। तो आज अभी हम लोग 9 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल करेंगे। ओके, मतलब कोई भी एक नंबर हो, कोई भी एक नंबर हो, मान लेते हैं कि 5, 4, 6, 3, 7, 2, 8, 1। इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। अगर पूछा जाए इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट, তাহলে কিভাবে कैसे हम लोग पता लगाएंगे, जो भी यहाँ पर डिजिट है उनको जोड़ते जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही 9 आएगा हम लोग काट देंगे, ठीक है, जोड़ेंगे, जैसे ही 9 आएगा हम लोग काट देंगे। तो देखो 5, 4, 9 आ रहा है, काट दिए। 6, 3, 9 आ रहा है, काट दिए। 7, 2, 9 आ रहा है, काट दिए। 8, 1, 9 आ रहा है, काट दिए। तो अगर देखो, अगर ये जो टोटल जो नंबर हुआ या तो 9 हो रहा है, जो बच रहा है वो 9 हो रहा है, या तो वो 0 हो रहा है, या तो 9 होगा या क्या होगा, या 0 होगा। इस केस में वो नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। जो भी संख्या है उसको जोड़ेंगे, अगर जोड़ने के बाद अगर 9 आ रहा है या 9 का मल्टीपल आ रहा है, যদি 9 আসছে বা 9 এর মাল্টিপল আসছে বা 0 আসছে, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 फर्स्ट। अब देखो डिविजिबिलिटी ये है 9 का रूल, 9 का रूल। अब आते हैं 8 का रूल। 8 का रूल क्या होगा, कोई भी एक नंबर हो, मान लो 7, मान लो 7, 6, 5, 1, 6, 8, 7, 1, 5, 1, 2। इतना बड़ा संख्या है, बहुत अनेक बड़ नंबर এটা। কিন্তু আমরা এত দেখবো না যে কত বড় নাম্বার, আমরা দেখো লাস্ট 3 ডিজিট। এই লাস্ট 3 ডিজিট যদি 8 দিয়ে ডিভিজিবল হয়, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अगर ये लास्ट 3 डिजिट, अगर ये लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, देन द होल नंबर ये যতটা পুরো कंप्लीट जो होल जो नंबर है वो पूरा का पूरा 8 से डिवाइड होगा। तो बिल्कुल ये 512 डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल होगा। 8 का क्यूब है ये 512। 8 6 48, 3 2 8 4 32। तो ये 512 क्या है, 8 का क्यूब है। तो 8 का क्यूब है, बिल्कुल 8 से डिवाइड होगा। तो हेंस दिस नंबर द टोटल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो ये होगा 8 का रूल। हमेशा लास्ट का 3 हमें लेना है, लास्ट का 3 नंबर हमें लेना है हमेशा। तो देखो ये था मेरा 9 का रूल, ये है मेरा 8 का रूल। अभी उस क्वेश्चन पे आते हैं, देखो कहां गया क्वेश्चन। हाँ ये है क्वेश्चन, देखो। तो क्वेश्चन पे देखो ये क्या 72 है, तो मतलब क्या, एक तो 9 से डिवाइड होना चाहिए, एक 8 से डिवाइड होना चाहिए। पहला बात तो ये है। अब लास्ट का 3 डिजिट ये क्या होना चाहिए, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो लास्ट का 3 डिजिट 8 से जैसे हम लोग डिवाइड करें तो क्या लेंगे, 7 8y। 7 8y जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं 8 से, देखो ये क्या हो रहा है, देखो 8 9 72, 72 क्या आ जाए 6y। अब y को क्या रखेंगे ताकि ये 8 से डिवाइड हो जाए, तो y को यहां पर सिर्फ 4 ही रख सकते हैं, 64 ही यहां पर रख सकते हैं ताकि वो 8 से डिवाइड, 8 8 64। ठीक है, 8 8 64। तो यहां पर क्या हो गया मेरा, y मेरा क्या, यहां पर क्या हुआ 4 हुआ। तो देखो ये तो y तो अब हट गया, y की जगह क्या हो गया यहाँ पर 4 हो गया। अब आता है 9 देखना होगा।
तो देखो ये तो 9 कट गया, 6 3 9 ये दोनों कट गया, ठीक है। देखो 5 4 ये भी कट गया, क्या बचा 8 8 16, 16 प्लस 7 23, 8 8 16, 16 प्लस 7 कितना हुआ 23। आप 23 में क्या ऐड करेंगे ताकि वो 9 से मेरा क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, तो 23 में हम लोग 4 ऐड करेंगे तभी मेरा क्या हो जाएगा वैल्यू 27 आएगा, और 27 मेरा 9 से डिविजिबल है, 27 मेरा 9 से मेरा डिविजिबल है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो x का जो मान है, x का मान है वो क्या निकल के आया 4 निकल के आया। तो x का मान मुझे मिल गया 4, y का मान यहाँ पर मुझे मिल गया है 4, x का मान 4 y का मान 4, तो 4x माइनस 3y इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4x मतलब 16 और 3y मतलब 12, तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा 4, मतलब ऑप्शन मेरा हो गया 2 और आंसर हो गया मेरा 4, तो 2 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 75। अब देखो 75 से डिविजिबल नहीं है, तो 75 का देखो अगर हम लोग फैक्टर्स देखें, फैक्टर्स तो एक तो देखो यहाँ पर क्या है, एक तो 25 आ रहा है, एक में आ रहा है 3, एक आ रहा है 25, एक आ रहा है 3। अगर 25 भी देखा जाए तो ये भी क्या है मेरा 5 इंटू 5 है, ठीक है। तो या तो 5 से वो डिवाइड होना चाहिए और 3 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो मेरा 75 से डिविजिबल है। तो जो संख्या 5 से डिविजिबल नहीं है और 3 से डिविजिबल नहीं है, या इन दोनों में से कोई भी एक किसी एक से डिविजिबल नहीं है, वो मेरा 75 से डिविजिबल नहीं होगा। 75 फैक्टोरियल कত না 25 3, তো যে নাম্বারগুলো 5 দিয়ে বা 3 দিয়ে ডিভাইড হবে না, 5 বা 3 দিয়ে ডিভাইড হবে না, এখানকার মধ্যে যে নাম্বারটা 5 দিয়ে 3 দিয়ে ডিভাইড হবে না সেটাই একমাত্র আমার 75 দিয়ে ডিভাইড হবে না। দেখো তো 5 5 0 0 যদি লাস্টের সংখ্যাগুলো 5 বা 0 হয় তাহলে এটা 5 দিয়ে ডিভিশন হবেই হবে। যদি লাস্টের সংখ্যাগুলো 5 দিয়ে বা 5 বা 0 থাকে তাহলে মানে ইউনিট ডিজিট, লাস্ট সংখ্যা ইউনিট ডিজিট যদি 5 বা 0 থাকে তাহলে ওইটা 5 দিয়ে ডেফিনেটলি ডিভাইড হচ্ছে। বাট 3 দিয়ে ডিভাইড আমাকে দেখতে হবে, তাহলে এবার 3 এর আমাকে ডিভিজিবিলিটি রুল দেখতে হবে। তো ডিভিজিবিলিটি রুল অফ 3, ঠিক আছে, ডিভিজিবিলিটি রুল, ঠিক আছে, ডিভিজিবিলিটি রুল অফ 3 কি যখনই নাম্বার থাকবে, যে নাম্বার থাকবে মানলো এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ, যে কোনো নাম্বার থাকবে, নাম্বারস গুলো সামেশন জানো 3 এর মাল্টিপল হয়। এই নাম্বারস গুলো যখন আমরা সাম করব a প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি প্লাস ই প্লাস এফ প্লাস জি প্লাস এইচ, এই নাম্বারটা জানো 3 এর মাল্টিপল হয় তবে ইট ইজ ডিভিজিবল। যদি নাম্বারটা 3 এর মাল্টিপল হলো দেন ইট ইজ ডিভিজিবল বাই 3, ঠিক আছে। তো দেখো এখানে তো 5 দিয়ে সবগুলোই হচ্ছে, তো আমাকে তো সবগুলোই চেক করতে হবে যেটা 3 দিয়ে আমাদের ডিভাইড হবে। তো এখানেও আমরা কি করব, যখন 9 আসবে আমরা কেটে দেবো, ঠিক আছে, কেন 9 ইজ অলরেডি ডিভিজিবল বাই 3, তো আমরা যখন 9 তখন কেটে দেবো। দেখো তো 9, তো 9 এলো কেটে দিলাম। 7 দেখো 7 1 8 1 9, তো এটাও কেটে গেল। 7 5 12, 12 ইজ ডিভিজিবল বাই 3, তো এটাও কেটে গেল। আমাদের কি চাইছে, নট চেয়েছে, ঠিক আছে, নট চেয়েছে। তো দেখো এবার এখানে আসে 5 4 9, এটা হচ্ছে 7 2 9, 7 4 12, এটাও কেটে গেল, তার মানে এটাও নয় এটাও নয়। এবার 3 নাম্বার আসছে দেখো 6 3 9 7 5 12, কেটে গেল, 1 বাঁচলো, 1 বাঁচলো মানে কি সামথিং কোনো রিমাইন্ডার রয়ে গেল, 1 বেঁচে গেল না, এক তো রয়ে গেল, তো হেন্স ইট ইজ নট ডিভিজিবল বাই 75। কেন কি আমার এখানে 1 বাঁচছে, তো এটাকে সবগুলো দেখো 6, সবগুলো তো আমার 3 দিয়ে কেটে যাবে, কিন্তু এখানে দেখো একটা বেঁচে গেল, এখানে এটা 3 দিয়ে কাটবে না বিকজ এটা 3 এর মাল্টিপল হচ্ছে না। হেন্স এই নাম্বারটা যে অপশন নাম্বার 3, দিস ইজ দ্য নাম্বার দ্যাট ইজ নট ডিভিজিবল বাই 75, অপশন নাম্বার 3 হয়ে যাবে আমার কারেক্ট আনসার। This would be my correct answer. Okay. Next, how many numbers are there from 200 to 800 which is neither divisible by 5 nor by 7? 5 দিয়েও ডিভিজিবল নয় আবার 7 দিয়েও ডিভিজিবল নয়। তো দেখো যদি বলি কতগুলো নাম্বার আছে, ফার্স্ট অফ অল 800 মাইনাস 600, ঠিক আছে, কতগুলো হচ্ছে 800 মাইনাস 200, 800 মাইনাস 200 ইজ ইকুয়াল টু 600। কিন্তু আমাদের এই 800টাও ধরবো না বিকজ জিজ্ঞেস করেছে হাউ মেনি নাম্বারস আর দেয়ার ফ্রম 200 টু 800, ঠিক আছে, তো 800টা ধরবো না, মানে 599 নাম্বারস আছে টোটালে। আমরা 200 টাকাও বাদ দিলাম, আমরা 800 টাকাও বাদ দিলাম, তাহলে কত বাঁচলো, কত নাম্বার বাঁচলো, 599 নাম্বারস আমাদের আছে। এবার এর মধ্যে থেকে খুঁজতে হবে যে কোন নাম্বারটা 5 দিয়ে আমাদের ডিভিজিবল আছে, কোন নাম্বারটা 7 দিয়ে আমাদের ডিভিজিবল আছে, ঠিক আছে। তো আমরা প্রথমে একটা ভেন ডায়াগ্রাম বানাচ্ছি জাস্ট টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। ভেন ডায়াগ্রাম, এটা হচ্ছে 5 এর ভেন ডায়াগ্রাম, ঠিক আছে। তো যদি 200 পর কোন নাম্বার আছে যেটা 5 দিয়ে ডিভাইড হবে, তো 205। আচ্ছা 800 আগে কোন নাম্বার আছে যেটা 200 দিয়ে ডিভাইড হবে, তো 795। এবার যদি আমি বলি যে কতগুলো নাম্বার আছে
যেগুলো আমাদের ডিভিশন হবে 5 দিয়ে। তো কিভাবে আমরা বার করব? আমরা বার করব L মাইনাস A বাই D মাইনাস 1 ইকুয়ালস টু N, এটা প্লাস হবে, হ্যাঁ, প্লাস L মাইনাস A বাই D প্লাস 1 ইকুয়ালস টু N। ঠিক আছে, তো L এখানে কি? L হচ্ছে আমার লাস্ট লিমিট, এ হচ্ছে কি? এ হচ্ছে আমার ফার্স্ট লিমিট, আর ডি হচ্ছে আমার ডিফারেন্স। ডিফারেন্স মানে যেটা এখন 5 ধরছি। এ ইকুয়ালস টু কি? এ হচ্ছে আমার ফার্স্ট টার্ম, এল হচ্ছে আমার লাস্ট টার্ম, ডি হচ্ছে কি? ডি হচ্ছে আমার কমন ডিফারেন্স। ঠিক আছে, তো এখানে আমার ফার্স্ট টার্ম কি দাঁড়াচ্ছে? ফার্স্ট টার্ম আমার দাঁড়াচ্ছে এখানে 205। লাস্ট টার্ম কি দাঁড়াচ্ছে? লাস্ট টার্ম দাঁড়াচ্ছে আমার 795 ডিভাইড বাই 5 প্লাস 1 ইকুয়ালস টু n। কত হচ্ছে এখানে দেখো, এটা যে 95, যে আমি যদি 5 কাউন্ট করছি 90, তো 5, এটা হচ্ছে 590 ডিভাইড বাই 5, 590 ডিভাইড বাই 5 প্লাস 1 ইকুয়ালস টু n। কত হচ্ছে এটা? তো 118 প্লাস 1 119। তো এটা আমার দাঁড়ালো 119টা সংখ্যা আছে। তো 119 119টা সংখ্যা আছে যেটা 5 দিয়ে আমাদের ডিভিজিবল। ঠিক আছে, সিমিলারলি দেখো 7 যখন আমি করব, 7, এবার 7 করছি, তো 200 যদি দেখি, 200 পর এমন কোন নাম্বার আছে যেটা 7 দিয়ে ডিভিজিবল? তো আমি যদি করি 200 রেখে দেখো, তাহলে 210 একটা আসছে, 210 যেটা 7 ইন্টু 30 হচ্ছে, তার মাইনাস যদি 7 করি 203। তো 200 পর 203 যেটা হচ্ছে সেটা আমার ডিভিজিবল বাই 7। আচ্ছা, আবার 800 করতে হবে, 800 থেকে নিচে করতে হবে। তো 700 আর এদিকে 14 সাথে 98, তাহলে 798 হবে লাস্ট টার্ম, এটা হচ্ছে ফার্স্ট টার্ম, এটা হবে আমার লাস্ট টার্ম যেটা 7 দিয়ে ডিভিজিবল। সিমিলারলি আবার দেখো আমরা n বার করবো এরকম ভাবে। তো কি বেরোবে দেখো, 798 মাইনাস 203 ডিভাইড বাই 7 প্লাস 1 ইকুয়ালস টু n অফ 7। ঠিক আছে, তো কত হচ্ছে দেখো, এখানে 3 দিয়ে করলাম, তাহলে এটা হচ্ছে 5, এটা হচ্ছে 9, এটা হচ্ছে 5 ডিভাইড বাই 7 প্লাস 1। তো 7 8 যা 56, আর 56 হলো তো 35, 7 5 35, তো 7 8 যা 56, আর এখানে হচ্ছে 5, তো 85 প্লাস 1 ইজ ইকুয়ালস টু 86 হলো। এখানে যে আমার ভেন ডায়াগ্রামটা এলো সেটা হলো 7 এ যেটা আসছে সেটা হচ্ছে আমার 86। আচ্ছা, এই ভেন ডায়াগ্রাম যখন আমরা করলাম, এই পার্টটা কি? এই পার্টটা কমন ফর বোথ। এই যে পার্টটা দেখতে পাচ্ছ, এই পার্টটা কি? এই পার্টটা কমন ফর বোথ। তো কমনটা কিসের জন্য আসছে? না, 35 এর জন্য আসছে। কিসের জন্য? 35 এর জন্য। 35 এমন একটা নাম্বার যেটা 5 দিয়েও ডিভাইড, 5 দিয়েও যাবে, আবার 7 দিয়েও যাবে। মানে যে নাম্বারটা 35 আমরা যখন এই যে 200 পর যে 5 দেখছি, যখন আমি 35 এ মাল্टीपल যাব, ওই नाम्बारগুলো 5एও ऐड करा আছে, আবার 7एও ऐड करा আছে। जो भी नंबर 35 से जाएगा 200 के बाद से 35 का जो भी मल्टीपल आएगा, वो नंबर 5 में भी है और 7 में भी है। तो वो नंबर को मुझे क्या करना? माइनस करना होगा पहले। ठीक है, तो देखो अगर 35 देखा, 35 अगर देखा जाए तो 200 के बाद कौन सा नंबर है जो 35 से जाएगा? 35 जिसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बनेगा। तो 35 क्या हो रहा है देखो, 210 होगा। 35 टू 70, 73 जा 210। तो 200 के बाद से 210 है जो मेरा 35 से डिविजिबल है कि नहीं? और जब 700 जा रहा है, देखो 700 के बाद 770, 770 के बाद 805, तो 770 800 से पहले 770 वो लास्ट टर्म है जो 35 से मेरा डिविजिबल है। तो कितने ऐसे टर्म होंगे जो 35 से डिविजिबल होंगे? तो क्या है मेरा फॉर्मूला? लास्ट नंबर 770 माइनस फर्स्ट नंबर 210 डिवाइडेड बाय डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 35 प्लस 1। तो ये कितना हो रहा है देखो यहाँ पर 560 और देखो 0 काटा, 1 से 6, 2 से 5, 560 डिवाइड बाय 35 प्लस 1। 5 से देखो ये पहले 7 से कटेगा, 7 5 7 से कटेगा 80, तो 5 से कटेगा 16, 16 प्लस 1 17। 17 ऐसा नंबर है जो 3 में, जो 5 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, और जो यहाँ पर मौजूद है इस प्लेस में जो मौजूद है। ठीक है, तो ऐसा 17 नंबर्स है। तो पहले हम लोग ऐड कर लेंगे, टोटल कितने हो रहे देखो 119 प्लस 109 आया, और दूसरा कहाँ आया? दूसरा हमारा है 86। तो कितना हो रहा है 695 कैरी 1, ये मेरा हो जाए 0 कैरी 1 205। ये टोटल नंबर्स है जो 800 और 200 के बीच में है।
এই 205টা নাম্বার আছে যেটা 800 আর 200 এর মাঝখানে আছে, ঠিক আছে, আর যেটা 5 আর 7 দিয়ে ডিভিজিবল আছে। কিন্তু 35 দিয়ে যেগুলো ডিভিজিবল হচ্ছে সেগুলোকে তো বাদ दिते হবে। तो माइनस का 17 माइनस 17 कितना हो यहाँ पर 8 8 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 8 188। तो 188 मेरा हुआ 188 नंबर्स जो मेरा 5 से भी जा रहा है और 7 से भी जा रहा है, 188 नंबर्स। लेकिन ये क्या पूछा क्या है कि विच आर नाइदर डिवाइड बाय 5 नॉट डिवाइड बाय 7। तो टोटल कितने नंबर थे? टोटल नंबर थे मेरा 599। और कितने नंबर्स डिविजिबल हैं? 188। 188, तो कितना नंबर मेरा बच गया? 114। तो 411 नंबर्स आर नॉट डिवाइडेड बाय 5, 411 नंबर्स आर नॉट डिवाइडेड बाय 5 নট ডিভাইড বাই 7। তো 411 নাম্বার যেটা 5 দিয়েও ডিভিজিবল নয় আবার 7 দিয়েও ডিভিজিবল নয়। এইভাবে তোমাদের করতে হবে, ঠিক আছে? আই হোপ ইটস ক্লিয়ার। ওকে, পুরোটা বুঝাতে পেরেছি আমি এখানে কেন ভেন ডায়াগ্রামটা আমি নিলাম, কেন 7 দিয়ে আমরা এটাকে ভেন ডায়াগ্রামটাকে এটা ম্যাচ করে এখানে বার করলাম। আই হোপ ইটস ক্লিয়ার। আর এই যে টার্মটা যেটা আমি এখানে দেখালাম এটাকে আমি একটু জাস্ট রাব করছি, ঠিক আছে? এটাকে আমি রাব করে পরে লিখছি আরো। এই যে টার্মটা কে L মাইনাস A বাই D প্লাস 1 ইকুয়ালস টু N, এইটা আমরা পাবো এপিতে। এপিজিপি যখন আমরা করব তখন আমরা এই টার্মটাতে আবার ফিরে আসবো, ঠিক আছে? আপাতত এটুকু মনে রাখবে, ঠিক আছে? এপিজিপি যখন করবো তখন আমরা এই টার্মে ফিরে আসবো। আই হোপ ইটস ক্লিয়ার, ঠিক আছে? নেক্সট আমরা দেখবো। তো এবার দেখো নেক্সট क्वेश्चन देखो, इफ द 9 डिजिट नंबर की 9 डिजिट है 9 M 2 3 6 5 N 4 8 इट्स कंप्लीटली डिवाइडेबल बाय डिविजिबल बाय 88। इट्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय 88। এবার দেখো 88 মানে কি 11 into 8, 11 into 8 88। তো আমরা 8 এটা জানি লাস্টের তিনটে সংখ্যা 8 দিয়ে ডিवाइडेबल হয়, लास्ट 3 जो अंक है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो पूरा का पूरा जो सम है, पूरा का पूरा नंबर है वो 8 से डिविजिबल होगा। पर 11 का क्या, व्हाट अबाउट 11? तो এই যে অল্টারনেট নাম্বারসগুলো যখন অ্যাড করব, অল্টারনেট নাম্বারসগুলো যখন আমি অ্যাড করব, ঠিক আছে, তারপর ওটাকে অন্য অল্টারনেট নাম্বারস দিয়ে যখন আমি মাইনাস করব, হয় 11 আসতে হবে বা 11 এর মাল্টিপল আসতে হবে বা 0 আসতে হবে, তখন আমরা বলবো যে ওই নাম্বারটা ইজ ডিভিজিবল বাই 11। যদি বুঝতে না পারো আমি এখন করে দেখাচ্ছি তোমার সামনে। তো ফার্স্ট দেখো কি N48 আছে, ঠিক আছে? N48 আছে, তো আমি যদি ধরে নাও N48 নিচ্ছি, ইট শুড বি ডিভিজিবল বাই 8। দেখ n কে আমি এখানে যদি আমি 1 করি তো 148 ইজ ইট ডিভিজিবল বাই 8? নো, ইট ইজ নট ডিভিজিবল বাই 8। আমি যদি করি 8 1 যা 8 তো বাজলো 68 ইজ নট ডিভিজিবল বাই 8। যদি আমি n কে করলাম 2 তো 248 এলো, ইজ 248 ডিভিজিবল বাই 8? ইয়েস, 248 ইজ ডিভিজিবল বাই 8। তো n এর আমার ভ্যালু একটা হলো 2, n এর একটা ভ্যালু ছিল 2, বিকজ এখানে কি চাইছে ফর দি স্মলেস্ট ভ্যালু অফ n। তো n তো 0 হতে পারে, n কি 0 হতে পারে? কিন্তু দেখো n তো 0 হতে পারে কারণ 48 আছে, আগে যদি এখানে n 0 হয়ে যায় দেন ইটস অলসো ডিভিজিবল বাই 8। বাট এখানে একটা কি বলেছে m and n আর ন্যাচারাল নাম্বারস, যদি ন্যাচারাল নাম্বারস বলে থাকে देन इट कैन नॉट बी 0। এখানে n यहाँ पर n 0 हो सकता था, लेकिन क्योंकि बोल दिया गया n और m आर नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स में तो 0 होता ही नहीं, वो तो 1 से शुरू होता है, hence n cannot be 0। then the next digit that is divisible by 8 is 248। तो वो हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 248। तो n का मेरा वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया? n का मेरा वैल्यू यहाँ पर आ गया है 2। अब देखते हैं पूरा का पूरा, ये देखो तो 9 प्लस 2 ऑल्टरनेट नंबर्स लेंगे। 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 6 कितना है? 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 2 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 8 19 प्लस 8 कितना? 27। ये आ गया मेरा 27। अब ये नंबर्स लेंगे तो m प्लस 3 कितना? 3m, 3m प्लस 3, फिर आता है प्लस 5 तो m प्लस 8, फिर आता है 4, m प्लस 8 प्लस 4 m प्लस 12। जैसे माइनस करेंगे m प्लस 12, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 11 या इट शुड बी 0, या तो मल्टीपल होगा 11 का या 0 होगा। तो जैसे हम m प्लस 12 करेंगे ऐसे m प्लस 12 ऐसे m प्लस 12 है ये m, ठीक। तो m प्लस 12 जैसे करेंगे तो ये कितना हो रहा है? देखो यहाँ पर आ रहा है मेरा 15 माइनस m, तो 15 माइनस m शुड बी इक्वल्स टू या तो 11 या तो 0। अब देखो m का जो मेरा डिजिट है
वो 1 से लेके 9 तक ही जा सकता है। यहाँ पर तो 15 भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन m का तो 15 होगा नहीं, 1 से लेके 9 तक ही जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 9। तो m का कौन सा वैल्यू यहाँ पर रखेंगे ताकि या तो 11 आ जाए या तो 0 आ जाए। तो m का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। m का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर मुझे हमें क्या मिला, m मिला यहाँ पर हमें 4, और जो n है वो कितना हुआ, n मेरा हुआ यहाँ पर 2। पूछा क्या गया है, m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। m क्या है मेरा 4, 4 स्क्वायर 16, और यहाँ पर n स्क्वायर, n क्या है 2, 2 स्क्वायर 4, तो 16 4 जा 64। ऑप्शन नंबर 2 इज माई करेक्ट आंसर। आई होप इट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, इफ द 9 डिजिट 7x 79 251 y8 इज डिवाइडेड बाय 36। अब देखो 36 बोला, तो 36 का मल्टीपल क्या क्या होता है, 6 भी होता है, इधर 6 भी आएगा, 6 का मल्टीपल होगा। और कौन सा मल्टीपल है, तो 2 का है, 3 का है। अच्छा, और कौन सा मल्टीपल है, यहाँ पर 9 का है और 4 का है, बिल्कुल ये भी हो सकता है। तो अगर देखो 9 का 4 का है, तो 4 में क्या बोला गया था, 4 में बोला था 4 का, अगर 4 में अभी तक बोला नहीं, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 ये क्या होगा, लास्ट का 2 डिजिट इट शुड बी डिविजिबल बाय 4। जो भी नंबर है n, जो भी नंबर है पूरा नंबर में लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, লাস্টের দুটো ডিজিট যদি 4 দিয়ে ডিভাইড হচ্ছে, তাহলে ওটা পুরো নাম্বারটা ইজ ডিविजिबल बाय 4। पूरा नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा। अब देखो, अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक, लेकिन पूछा क्या कहते हैं, फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y। देखो लार्जेस्ट वैल्यू, तो हम लोग y का कितना भी ले सकते हैं, 0 1 2 3, लेकिन लार्जेस्ट वैल्यू लेना है। ठीक है, देखो अगर लार्जेस्ट वैल्यू लेते हैं तो 4 ले सकते हैं, ठीक है, 6 ले सकते हैं, ठीक है, 8 ले सकते हैं, ठीक है, 9 ले सकते हैं, क्या 9 नहीं ले सकते, 8 तक जाएगा। तो फॉर लार्जेस्ट वैल्यू y इक्वल्स टू 8 होना चाहिए। जब y इक्वल्स टू 8 होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा, और लास्ट का 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, तो y होना चाहिए 8। अब देखो जब 8 मेरा y हो गया, अब पूछा क्या गया, 9 से, 9 है मेरा, 9 एक और, तो जब भी हम लोग 9 आएंगे उसको हम लोग काट देंगे। ठीक है, तो देखो 9 से ये कट गया, 7 + 2 9 ये भी कट गया, 8 + 1 ये भी कट गया, क्या बचा यहाँ पर y इक्वल्स टू 8, ये 5 बचा, ये 7 बचा, ये x बचा, यही बचा है। तो 7 + 5 12 प्लस ये क्या है यहाँ पर 8, ठीक है, 7 + 5 12 + 8 20 प्लस x है, शुड बी इक्वल्स टू 9 का मल्टीपल 9n, तो ये तो 20 हो रहा, और कितना ऐड करेंगे ताकि 9 आ जाए, तो 7 ऐड करेंगे, और 20 + 7 वो बन जाएगा 27, दैट इज इक्वल टू 9n, n मेरा हो जाएगा 3, तो ये मेरा हो जाएगा 9 का फैक्टर, तो x का वैल्यू क्या आया हमारा, 7 आया, तो x का वैल्यू मेरा आ गया है यहाँ पर 7, और मेरा y का वैल्यू यहाँ पर आ गया है 8। अब पूछा क्या गया है, 10x² माइनस 3y²। 10x² x² कितना होता है, 49, 49 इंटू 10 490, माइनस 3y², y क्या है 64, तो 64 इंटू 3 कितना होगा 192। तो अगर देखो 190 अगर माइनस करते हैं तो कितना होता है, 300 होता है, तो 300 से और 2 कम में 298। ऑप्शन नंबर 4 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी देखो ये 2 से कितना जाएगा, 8 जाएगा, अगर 490 से माइनस करना 1 तो ये क्या जाएगा, 8 जाएगा। 8 कहाँ है, 8 यूनिट डिजिट में कहाँ है, यहाँ है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 4 में करेक्ट आंसर। या तो यूनिट डिजिट से भी हम लोग मार सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि 9 का जो डिविजन रूल है, जो डिवीजन का रूल है वो क्या है, और 4 का डिवीजन का रूल है वो क्या है। इस क्वेश्चन में आपको ये दोनों पता चल गया, 9 का तो पहले पता था, अभी 4 का भी पता चल गया। अच्छा, अगर मान लीजिए सिर्फ 6 का निकालते तो 6 में वो उसको 2 से भी डिवाइड होना होता है और 3 से भी डिवाइड होना होता है। जो যে কোনো নাম্বার যেটা 2 দিয়েও ইভেন নাম্বার হবে, যে কোনো নাম্বার যেটা ইভেন নাম্বার হবে এবং 3 দিয়ে ডিভাইড হবে, সেই সব নাম্বারগুলো 6 দিয়েও ডিভাইড হবে। কি বললাম, যে কোনো ইভেন নাম্বার যেটা 3 দিয়ে ডিভাইড হবে সেটা 6 দিয়েও ডিভাইড হবে। দ্যাটস ইট। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখি, কোয়েশ্চেন নাম্বার 9। এবার দেখো আবার কোয়েশ্চেন 9 দিয়েছে, তো 9 ডিজিট 8 4 7 5 6 3 9 AB বলেছে ইট শুড বি ডিভিডেড বাই 99। ঠিক আছে, ইট শুড বি ডিভিডেড বাই 99। তো 99 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে। তো 99 কি আছে, 99 মানে কি, 99 হচ্ছে 11 × 9।
ঠিক আছে 11 ইন্টু 9। তো যখন 9 দেখবো, দেখো 9 যখন দেখছি আমি, দেখো 6 3 9 এটা কেটে গেল, 9 এটা কেটে গেল, ঠিক আছে 5 4 9 এটাও কেটে গেল, কি বাঁচলো 8 আর 7 বাঁচলো, 8 7 15, 15 प्लस a प्लस b शुड बी इक्वल्स टू 9 एंड मल्टीपल, 9 का मल्टीपल। अब 11 देखते देखो, तो क्या है 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 9 30, 30 प्लस b, 30 प्लस b शुड बी, देखो 4 5 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस a, तो माइनस 12 प्लस a शुड बी इक्वल्स टू कितना 11 का मल्टीपल, नहीं तो 0 कोई भी एक। आप देखो अब आते हैं हम लोग किसमें, ऑप्शन पे। अगर मानते हैं बी मेरा 3 है, बी मेरा 3 है और ए मेरा 5 है, बी 3 तो ए 5, तो ऑप्शन के हिसाब से ये हो गया 33 और ए 5 ये मेरा हो गया 17। तो 33 17 क्या वो 11 होगा, नहीं होगा। अब देखो ए 4 बी 8, बी 8 का मतलब यहां पर 8 से अगर करेंगे बी 8 तो कितना होगा 38, और ए 4 ये कितना होगा 16, तो 38 16 क्या इसका जो माइनस करें क्या वो 11 का मल्टीपल आएगा, नहीं आएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। और इज इट नॉट पॉसिबल, कितना आएगा देखो 22 यही है ना, 22 प्लस 16 30, 22 दैट इज n का मल्टीपल, देखो यहाँ पर n का मल्टीपल आ रहा है 22। तो इसको चेक करना है, अब कैसे चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे, देखो 8 प्लस 4 12, 8 प्लस 4 12, तो यहाँ पर 15 अगर देखा जाए, देखो 15 प्लस 12 कितना हो रहा है, 15 प्लस 12 27, दैट इज इक्वल 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप इट्स क्लियर, मैं आपको समझा पाया। बाकी दो ऑप्शन आप चेक कर लो, वो नहीं आएंगे, चेक कर लेना, ठीक है, ऐसे जैसे मैंने किया आप देख लेना, वो नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को कभी कभार आपको ऑप्शन से भी करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। अ डिवाइजर इज 15 टाइम्स द कोशेंट एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर। पहला बात, डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, कोशेंट और रिमाइंडर। तो डिवाइजर वो होता है, ডিভাইজারটা কি, যেটা দিয়ে আমরা ডিভাইড করব। ডিভিডেন্ড যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের নাম্বারটা ডিভিডেন্ড। কোশেন্ট যেটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে আমি ওর কাছে যাব, আর যা বাঁচলো সেটা আমার रिमाइंडर, যা বাঁচবে সেটা আমার रिमाइंडर। तो डिवाइजर क्या, जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे। डिविडेंड क्या, तो वो जो नंबर होता है इटसेल्फ जिसको डिवाइड करना है। कोशेंट क्या है, कोशेंट है जो कोशेंट है जो ऊपर में लिखा जाता है। जैसे मान लो अगर 20 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, अगर मान लो 20 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 होता है, तो 4 मेरा हो जाएगा कोशेंट। और कुछ तो बचा नहीं, 0 मेरा है रिमाइंडर। यहाँ पर 4 क्या है मेरा कोशेंट, जो ऊपर है कोशेंट, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पाया। कोशेंट का मुझे हिंदी नहीं आता, अगर किसी को हिंदी आता है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो वो जगह मेरा क्वेश्चन ये होगा रिमाइंडर। अब देखो क्या बोला है, क्या डिवाइजर इज 15 टाइम्स द क्वोशंट। जो डिवाइजर है वो क्या है, वो 15 टाइम्स द क्वोशंट, 15 टाइम्स द क्वोशंट एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है, वो 3 टाइम्स द रिमाइंडर है। रिमाइंडर दे दिया है 40, तो रिमाइंडर का 40 दिया है, तो 3 टाइम्स द रिमाइंडर, 3 इंटू 40 दैट इज इक्वल्स टू 120। जो मेरा डिवाइजर है मेरा, वो क्या है मेरा, जो मेरा डिवाइजर है वो कितना निकला, मेरा डिवाइजर है वो कितना निकला 120। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू 120। तो क्यू का वैल्यू कितना है हमारा, क्यू का वैल्यू यहाँ पर आ गया मेरा 8। तो क्वोशंट है मेरा 8। पूछा है डिविडेंड क्या है, तो नंबर पूछा है, तो नंबर क्या होता है, नंबर इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। तो डिवाइजर क्या है मेरा 120 इंटू क्वोशंट 8 प्लस रिमाइंडर 40। 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, 960 प्लस 40 इक्वल टू 1000 होगा। तो 1000 है नहीं, यहाँ पर एक और 0 लग जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सच दैट 517 x 324 इज डिविजिबल बाय 12। 12 से इसको डिवाइड करना है। अब x का क्या मान हो सकता है, तो 12 अगर हम देखेंगे 12 तो क्या होना चाहिए, 4 है और 3 है, 4 3 4 से 12, तो इसको 4 से भी डिवाइड होना है, 3 से भी डिवाइड होना है। तो बिल्कुल 4 से तो हो रहा है, देखो 324 जैसे ही लेंगे हम लोग लास्ट का 2 डिजिट, लास्टे 2 डिजिट আমরা নেব যখন 4 দিয়ে ডিভাইড করব, ওটা যখন চেক করতে হবে। 24 ইজ ডিভাইডেড বাই 4, একদম ডিভাইড বাই 4, হেন্স এটা 4 দিয়ে ডিভাইড তো হচ্ছে, কিন্তু 3 দিয়ে কি হবে, 3 দিয়ে হতে হলে কি করতে হবে, আমরা প্রত্যেকটাকে আমরা অ্যাড করে দেব, আর যদি 9 আসে আমরা কেটে দেব, ঠিক আছে। তো 3 চলে এলো, এটা দরকার নেই আমার।
7 + 2 9 চলে গেল, দরকার নেই আমার। 4 + 5 চলে গেল 9, দরকার নেই আমার, তাহলে 1 + x, তো 1 + x would be equals to 3 এর মাল্টিপল। 1 + x would be equals to 3 এর মাল্টিপল। তো x এর কোন ভ্যালু বসাবো যে 3 এর মাল্টিপল আসবে, তো x এর ভ্যালু 2 বসিয়ে দিই, x এর ভ্যালু যদি আমি 2 বসিয়ে দিই তাহলে এখানে 3 চলে আসবে। তো x এর মান কত হলো, x এর মান হলো আমার 2। जिज्ञेस करते व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x এর মান হচ্ছে আমার 2। ठीक है, x का मान फिर मेरा क्या आया, 2 आया। ये था इस सेशन का आखिरी स्लाइड। आई होप मैं आपको समझा पाया, इस सेशन को आपको इंटरेस्टिंग बना पाया। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से लोगों तक ये पहुंचे, और जो भी सीजीएल या रेलवे का जो प्रिपरेशन में स्टार्टिंग किए हैं उनका ये हेल्प हो सके। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।